Good morning, praise the Lord, Jai Masiki. I welcome you all in the matchless name of our Lord and Savior Jesus Christ to our Harvest Church online Sunday service. I'd also like to welcome those who have joined us for the first time. May God bless you all abundantly. As it is written in Psalms 100, verses 4 and 5, enter into his gates with thanksgiving and into his courts with praise. Be thankful unto him and bless his name. For the Lord is good. His mercy is everlasting, and his truth endureth to all generations. So, let us be thankful to our Lord for giving us this wonderful opportunity for attending online church service. I'd like to encourage you all to please like, share, and subscribe our YouTube channel. And to receive regular notifications, you can click the bell icon. We'd love to hear from you. You can post your prayer requests, testimonies, and comments in the comment section below. As we move forward, we will have a time of praise and worship by our Harvest Church choir, followed by a very powerful and spirit-filled word of God brought to us by our dear pastor, डॉक्टर रेवरेंड जॉन जोसेफ। आगे जाने से पहले मैं निवेदन करूंगी आपके घर के एक सदस्य से कि वे प्रार्थना में अगुवाई करें। आइए हम अपने सिरों को झुकाएं और प्रार्थना में जाएं। मेरी हर चाहत को पूरा तूने है किया यीशुआ। आशाएं मेरी संपूर्ण हो गई तुझ में यीशुआ। हर भूख मेरी तूने है जाना, बाहों में लेकर मुझको संभाला। हर भूख मेरी तूने है जाना, बाहों में लेकर मुझको संभाला। धन्यवाद यीशुआ तेरा, धन्यवाद यीशुआ। मेरी हर चाहत को पूरा तूने है किया यीशुआ। आशाएं मेरी संपूर्ण हो गई तुझ में यीशुआ। मेरी सोच से परे
आश्चर्य कामों से तूने पनाह दी। हर एक कमी में मेरी सोच से परे, आश्चर्य कामों से तूने पनाह दी। हर एक कमी में, कठिनाइयों में सब उजड़ा लगे, पर तेरे हाथ की परछाई कभी ना हटेगी। धन्यवाद यीशुआ तेरा, धन्यवाद यीशुआ। मेरी हर चाहत को पूरा तूने है किया यीशुआ। आशाएं मेरी संपूर्ण हो गई तुझ में यीशुआ। तेरी राहों से मैं खोया भी अगर, फिर भी तेरी कृपा छोड़े ना मुझे। तेरी राहों से मैं खोया भी अगर, फिर भी तेरी कृपा छोड़े ना मुझे। हर गुजारिश को कबूल तूने है किया यीशुआ। मेरे सवालों का जवाब तू ही यीशुआ, यीशुआ। धन्यवाद यीशुआ तेरा, धन्यवाद यीशुआ। धन्यवाद यीशुआ तेरा, धन्यवाद यीशुआ। यीशुआ तेरा, धन्यवाद यीशुआ। You are here, moving in our midst. I worship you, I worship you. You are here, working in this place. I worship you, I worship you. You are here, moving in our midst. I worship you, I worship you. You are here, working in this place. I worship you, I worship you. You are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. You are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God,
that is who you are. You are here, touching every heart. I worship you, I worship you. You are here, healing every heart. I worship you, I worship you. You are here, turning lives around. I worship you, I worship you. You are here, mending every heart. I worship you, I worship you. You are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. You are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. You are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. You are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. 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 You are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. You are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. Even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel that you're working. You never stop, you never stop working. You never stop, you never stop working. Even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop, you never stop working. You never stop, you never stop working. Even when I don't see that you're working. Even when I don't feel that you're working. You never stop, you never stop working. You never stop, you never stop working. Even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop, you never stop working. You never stop, you never stop working. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. You are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. That is who you are. That is who you are. That is who you are.
keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. You are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. 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 You are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. You are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. You are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. Praise the Lord. We thank God for beautiful singing. May God bless our choir and use them more and more for His glory. Friends, now time has come to give our tithes and offering unto the Lord. The word of God says, He loveth a cheerful giver. परमेश्वर हर से देने वालों से प्रसन्न होता है. Proverbs 3:9 and 10 says, Honor the Lord with thy substance, and with the first fruits of all thine increase. So shall thy barns be filled with plenty, and thy presses shall burst out with new wine. प्रियो, हम देखते हैं जब हम परमेश्वर को ऑनर करते हैं तो उसको हमें क्या परिणाम मिलता है. हमारे खत्ते सदा भरे पूरे रहते हैं. हम 1 Kings 17 में देखते हैं इलाइजा परमेश्वर का दास, उसके पास ना रहने का ठिकाना होता है ना खाने का. परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार चलता है. वो नाले के किनारे छिपा हुआ था. एक दिन जब नाले का पानी सूख जाता, परमेश्वर की वाणी आती है कि जरेपत के विधवा के पास तू चले जा. वो आज्ञा का पालन करता है और जरेपत के विधवा के पास आता है. काल का समय था. विधवा के पास एक मुट्ठी भर आटा और कुप्पी में तेल था. इलाइजा ने कहा, तू पहले मुझे एक रोटी बना के लेके आ. विधवा उसका आज्ञा का पालन करती है और हम देखते हैं प्रियो, विधवा का ना आटा खत्म होता ना कुप्पी का तेल. प्रेज द लॉर्ड. परमेश्वर आज भी वही है. इस लॉकडाउन के समय में जब सारे संसार में हाहाकार मची है, कितनों के पास जॉब्स नहीं है और जिसके पास जॉब्स है वो भी चली जा रही है. ऐसे संकट के समय में जो कुछ भी आपके पास है, अपना बेस्ट परमेश्वर के पास लाइए और उसका हम परिणाम देखेंगे कि हमारे खत्ते भरे पूरे रहेंगे. आइए हम प्रार्थना करें. हे जीवित और सामर्थी परमेश्वर, हम धन्यवाद करते इस सुंदर दिन के लिए, इस सुंदर मौके के लिए जब हम तेरे चरणों में आके तेरा धन्यवाद स्तुति आराधना कर सकते. तूने हमको अंधकार से ज्योति में लाया. हम जितने यहाँ पर इकट्ठे हुए प्रभु ऑनलाइन सर्विस में, सबको आशीष दे. उनके जॉब्स पर आशीष का हाथ होने देना, उनके बिजनेस पर, उनके खत्ते सदा भरे पूरे रहे लॉर्ड. और हम पास्टर जॉन के लिए भी प्रार्थना करते जो आज का वचन लेके आते हैं लॉर्ड. उनको भी अपने शरीर के आड़ में छुपा और वही हमें स्वर्ग मन्ना दे जो तूने आज हम सब के लिए तैयार किया है. हम उसको सुनने वाले नहीं पर उसके चलने वाले, उसके अनुसार चलने वाले भी बन सके. धन्यवाद करते. सारी महिमा गौरव जलाल तुझको देते हुए प्रार्थना यीशु के नाम मांगते. सुन ग्रहण कर. आमीन. खुदा से मांगो
उसके वादे पे एतबार करो, खुदा से प्यार करो, प्यार करो, प्यार करो, खुदा से प्यार करो, प्यार करो, प्यार करो, खुदा से मांगो मिलेगा, उसका वादा है वो देगा, खुदा से मांगो मिलेगा, उसका वादा है वो देगा, उसके वादे पे एतबार करो, खुदा से प्यार करो, प्यार करो, प्यार करो, खुदा से प्यार करो, प्यार करो, प्यार करो। पहले उसकी बादशाहत, उसकी राह चुनो, पहले उसकी बादशाहत, उसकी राह चुनो, तुमको दुनिया की हर एक चीज भी वो देगा सुनो, तुमको दुनिया की हर एक चीज भी वो देगा सुनो, वो जो कहता है करेगा, उसका वादा है करेगा, वो जो कहता है करेगा, उसका वादा है करेगा, उसके वादे पे एतबार करो, खुदा से प्यार करो, प्यार करो, प्यार करो, खुदा से प्यार करो, प्यार करो, प्यार करो। वही तो राह है, सच है, वही तो जीवन है, वही तो राह है, सच है, वही तो जीवन है, और उसने रूह जो भेजी है साथ हर दम है, और उसने रूह जो भेजी है साथ हर दम है, सदा साथ रहेगा, उसका वादा है रहेगा, वो सदा साथ चलेगा, उसका वादा है चलेगा, उसके वादे पे एतबार करो, खुदा से प्यार करो, प्यार करो, प्यार करो, खुदा से प्यार करो, प्यार करो, प्यार करो।
जय मसीह की, प्राइज द लॉर्ड, हालेलुया। हमारा खुदावन यीशु मसीह वो जीवित परमेश्वर और इमैनुअल परमेश्वर वो अभी इस समय हमारे साथ में है। आप लोग सभी का स्वागत है संडे मॉर्निंग ऑनलाइन चर्च सर्विस हार्वेस्ट चर्च का, और प्रभु बहुत ऐसे आपको आशीष दे। परमेश्वर का धन्यवाद हमारे वर्शिप टीम के लिए, भाई एल्विन गायकवाड़ पूरे टीम का, आपने बहुत अच्छे से वर्शिप लीड किया। सूजन ने आज ओपनर दिया, गॉड ब्लेस यू सूजन। मिसेस गिर का धन्यवाद हो ऑफरिंग एग्जॉर्टेशन का, एंड एलिस्टर का धन्यवाद, आपने जो सॉन्ग भी लीड किया ड्यूरिंग ऑफरिंग टाइम। दिस इज़ द बॉडी ऑफ क्राइस्ट, लिविंग बॉडी ऑफ क्राइस्ट, लाइवली बॉडी ऑफ क्राइस्ट, और यीशु मसीह हमारे बीच में आज भी निवास करता है। ये सीज़न हम लोग सब सावधानी बना के रखें ना। कोविड-19 बहुत जल्दी फैलता हुआ जा रहा है, हर एक प्रिकॉशंस मेंटेन करने पाए, और प्रार्थना प्रार्थना प्रार्थना। आई वॉज सो हैप्पी टू हियर दीज टेस्टिमनीज जो हमारे शाइन फॉर जीसस जो वेडनेसडे को जूम मीटिंग में आता है। डॉक्टर विक्टर जेडिक एंड हिज वाइफ बोथ आर डॉक्टर्स फ्रॉम रांची, 75 years of age, and how they recovered dramatically. अक्षय सिद्धांत सिंह की भी फैमिली और उनके पेरेंट्स भी कोविड-19 से थे, और कैसे यहाँ पर प्रार्थना की गई है, वो सब चंगे हो गए हैं। हम प्रार्थना कर रहे हैं, आपके पास प्रेयर रिक्वेस्ट होगी ज़रूर से भेजिएगा। हमारे पास जीवित परमेश्वर जो प्रार्थना सुनता और जवाब भी देता है। आइए आगे हम प्रभु के वचन में जाएंगे, और आज का शीर्षक है द एमिनेंट रिटर्न ऑफ जीसस। एमिनेंट रिटर्न ऑफ जीसस, ये आज का पार्ट 1, हो सके तो पार्ट 2 भी आगे हम लेंगे। एमिनेंट वर्ड का मीनिंग हम जानते, अबाउट टू हैपन, शीघ्र ही, जल्द होने वाला है। यीशु मसीह का आगमन बहुत जल्द है, बहुत निकट है। ये कभी भी हो सकता है, क्या पता अभी हो जाए, क्या पता आज रात हो जाए। हमें एग्जैक्ट टाइम नहीं पता, हमें एग्जैक्ट डेट नहीं पता। हम यहाँ पर कोई डेट नहीं बताने वाले आपको कि यीशु मसीह कब आने वाला, परंतु बाइबल में बताया है ना, जागते रहो और प्रार्थना करो। बाइबल बताया है कि चिन्हों को देखते रहना, प्रभु के आगमन के बारे में जो चिन्ह बता दिए जा रहे हैं। इनफैक्ट हिब्रूज चैप्टर 11 में वर्स 13 में भी लिखा है, परंतु उन्होंने अंगीकार की और कहा हम तो परदेसी है, हम तो स्ट्रेंजर्स एंड पिलग्रिम्स हियर ऑन अर्थ है। पहला पत्रस 2:11 में पत्रस ने भी लिखा है कि सब दुनियादारी देह अभिलाषा से हम दूर रहे ना, बिकॉज वी आर स्ट्रेंजर्स एंड पिलग्रिम्स हियर ऑन अर्थ। इस बातों को समझ लेना, हमारा ये पृथ्वी का जीवन 2 दिन का है। हमको यहाँ से छोड़कर वो स्वर्गीय स्थानों में जाना है जहाँ यीशु मसीह ने कहा मेरे बाप के घर में बहुत से मकान हैं और मैं जाता हूँ मैं जगह तैयार करने। जो स्ट्रेंजर्स और पिलग्रिम्स होते हैं उनके पास कोई परमानेंट ड्वेलिंग प्लेस नहीं होता है। हमारा पृथ्वी का यहाँ पर रहना ये 2 दिन का है। हमारा टाइम बहुत शॉर्ट है और ये शॉर्ट टाइम भी बहुत जल्दी टिक 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 होते जा रहा है। प्रभु का आना बहुत ही जल्द है। मत्ती 24 चैप्टर 36 कलम में भी यीशु मसीह ने कहा उस दिन और उस घड़ी के विषय में कोई नहीं जानता, न स्वर्ग के दूत और न पुत्र, परंतु केवल पिता जानता है। तो ठीक टाइम क्या है वो नहीं जानते हम लोग ना, परंतु मेरा परमेश्वर पिता जानता। ये समय उसके हाथ में है। बाइबल में परमेश्वर ने ना कोई भी घटना पृथ्वी पर होने से पहले बताया। आमोस 3 और 7 में भी लिखा, इस प्रकार से प्रभु यहोवा अपने दास भविष्यवक्ताओं पर अपने मर्म बिना प्रकट किए कुछ भी न करेगा। परमेश्वर बताता है, इसलिए हमको सीखना है परमेश्वर कैसे बताता है, कब है वो प्रभु के आने का समय कितना निकट है ना। परमेश्वर ने हर बातों के लिए एक समय ठहराया। जैसे नूह के दिनों में, अगर आप नूह के दिनों में रहते थे तो प्रभु ने एक भविष्यवक्ता नूह को भेजा था ना। उन दिनों का प्रॉफिट था ना, वो पुकार रहा था बड़ी भारी बाढ़ आने वाला है, ग्रेट फ्लड, और पूरा पृथ्वी डूब जाने वाला है। अगर आप नूह के बातों और वचनों पर विश्वास करते थे तो आप अपने घर को सुरक्षित कर लेते थे। पर अफसोस की बात है लोगों ने सुन करके बेकार फ्लड्स, उन दिनों में तो बारिश भी नहीं गिरती थी, फ्लड्स कहां से आने वाला है,
कभी सोची, पर जो परमेश्वर ने अपने दास के द्वारा वचन दिया था वो वचन अवश्य पूरा हुआ। मत्ती 24 चैप्टर में 37 to 39 वचन में नूह के दिनों के बारे में लिखा है ना। आगे मैं बहन मोनिका से रिक्वेस्ट करूंगा, और आप बहुत अच्छा बाइबल पढ़ते हैं, मेरी सहायता करें। मत्ती 24 चैप्टर 37 to 39 वचन पढ़ेंगे आप। जैसे नूह के दिन थे वैसा ही मनुष्य के पुत्र का आना भी होगा, क्योंकि जैसे जल प्रलय से पहले के दिनों में जिस दिन तक कि नूह जहाज पर ना चढ़ा उस दिन तक लोग खाते पीते थे और उनमें ब्याह शादी होती थी, और जब तक जल प्रलय आकर उन सबको बहा ना ले गया तब तक उनको कुछ भी मालूम ना पड़ा, वैसे ही मनुष्य के पुत्र का आना भी होगा। इसलिए आज की ये शिक्षा हम सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। परमेश्वर पृथ्वी पर कुछ करने से पहले अपने दास और भविष्यवक्ताओं के द्वारा कुछ संदेश भेजता है। हम सभी जानते हैं कि हम आज जो दिन में रहते हैं, ये दिन इतिहास में कभी पहले नहीं हुआ है। कितने भूकंप हो रहे, फ्लड्स हो रहे हैं, फायर हो रहा है, प्लेग्स, डिजीज नाना प्रकार के, और मृत्यु कितना हो, हॉस्पिटल्स पैक्ड हो जा रहे हैं, ऑक्सीजन सप्लाई नहीं है, लोग कॉरिडोर में लाकर बॉडीज को रख दे रहे हैं, लोग अपने प्रियजनों को अलविदा भी नहीं बोल सक रहे। ये ऐसी दिन तो पहले कभी इतिहास में नहीं हुआ है। हम सब जानते हैं ना, सेक्युलर वर्ल्ड भी बता रहा है तो हम तो ये कल युग में रह रहे हैं, ये पृथ्वी का नाश होने वाला है। ये साइंटिस्ट भी बता रहा है पृथ्वी का एक एज है, उम्र है, और ये धीरे धीरे बूढ़ा होते जा रही है ना। ये धीरे धीरे समय बढ़ता जा रहा है। ये पृथ्वी की क्षमता जो है, नेचुरल रिसोर्सेज सब एग्जॉस्ट होते जा रही है। पिछले ही दिनों में, इनफैक्ट इसी मंथ सितंबर 2020 में न्यूयॉर्क के अंदर में एक ग्रेट क्लाइमेट क्लॉक इंस्टॉल कर दिया गया है ना। ये बॉयड और गोलन ने ये क्लाइमेट क्लॉक को इंस्टॉल किया, और इस क्लॉक के मुताबिक ओनली 7 years रिमेनिंग, 7 साल बाकी है फॉर लाइफ टू एग्जिस्ट हियर ऑन अर्थ। इन्होंने जो कैलकुलेशंस लिया है ये कार्बन इमिशन से लिया है। 2017 के अनुसार जितना कार्बन फैक्ट्रीज के द्वारा, मोटर व्हीकल्स के द्वारा हो रहा है, उसके द्वारा पृथ्वी का तापमान, टेम्परेचर 1.5 डिग्रीज एवरी 7.5 years बढ़ते जा रहा है। अभी ये 1.5 बहुत थोड़ा और छोटा लगता होगा, पर इसका परिणाम बहुत भयंकर हो रहा है। आजकल आपने देखा ना टेम्परेचर कैसे एक्सट्रीम बढ़ते जा रहा है। इनका जो कैलकुलेशंस है ये मर्केटर रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑन ग्लोबल कॉमन्स एंड क्लाइमेट चेंज के अनुसार हो रहा है ना। और इन्होंने जो बताया है, इस तापमान बढ़ने के द्वारा ग्लेशियर्स पिघलते जा रहे हैं, सी लेवल राइज होता जा रहा है, डिवास्टेटिंग इफेक्ट हो रहा है, स्टॉर्म्स आते जा रहे, ड्राउट होते जा रहा है, फैमिन्स होते जा रहा, फायर, स्मोक, क्लाउड्स, ये सब होते जा रहा है पृथ्वी में ना। ये सब बातें तो यीशु मसीह ने बाइबल में 2000 साल पहले लिख दिया। मत्ती 21 और 11 कलम में लिखा है। हिंदी में मोनिका डायरेक्टली पढ़ दे प्लीज। और बड़ी बड़ी भूंडोल होंगी और जगह जगह अकाल और मरियां पड़ेंगी, और आकाश में भयंकर बातें और बड़े बड़े चिन्ह प्रकट होंगे। यस ना, फियरफुल साइट्स होंगे एंड ग्रेट साइन शैल बी देयर फ्रॉम हेवन ना। बाइबल कुछ बोल रहा है, पृथ्वी कुछ बोल रही है। प्रश्न है, आप सुन रहे हैं क्या? आपको कुछ समझ में आ रहा है क्या ना? जो परमेश्वर इशारे इशारे से बात कर रहा, उसके दूसरे आगमन की ये तैयारी है, और वो घड़ी, वो टाइम बहुत जल्द आने वाला है। देखिएगा, हम जो कैलेंडर यूज करते हैं, हमारा कैलेंडर ये सोलार कैलेंडर है, ये सन पर निर्भर करता है। जो मुसलमान कैलेंडर यूज करते हैं वो लूनार कैलेंडर, मून पर निर्भर करता है। पर जो जूइश जो कैलेंडर रिफर करते हैं उसको लूनी सोलार कहते हैं ना। वो कुछ लूनर और कुछ सोलार भी है, कुछ सन पर भी है और कुछ मून पर भी है। ये अलग अलग प्रकार के कैलेंडर मैनकाइंड रिफर कर रहा है। पर कहना चाहता हूं, गॉड के पास अपना खुद का कैलेंडर है ना। पहली बात समझ लो
कि हमारा परमेश्वर गड़बड़ी का परमेश्वर नहीं है। कोई भी काम डिसऑर्डरली, chaotic, अनप्लान्ड, अनस्केड्यूल नहीं करता है। परमेश्वर के पास एक टाइम है काम करने का, एक अपॉइंटमेंट डायरी है ना, वो अपना कैलेंडर के अनुसार काम करता है। इनफैक्ट सबुपदेशक 3:1 में भी लिखा है, हर एक बात का एक अवसर और प्रत्येक काम का जो आकाश के नीचे होता एक समय है। फॉर एवरीथिंग देयर इज अ टाइम, अ सीजन फॉर एवरी पर्पस अंडर हेवन। और उसके 2 से लेकर 8 कलम में लिखा है, एक समय होता जन्म का, एक समय होता है मृत्यु का, एक समय होता है ना घात करने का, चंगा करने का, रोपने का और बढ़ाने का, रोने का, विलाप करने का और आनंद करने का ना, एक समय होता है वॉर का, एक समय होता है, ये सब का समय 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 पूरे 8 कलम और 11 कलम में कहता है उसने सब कुछ ऐसा बनाया कि अपने अपने समय पर वे सुंदर होता। इंग्लिश में कहता है ही मेड एवरीथिंग ब्यूटिफुल इन हिज टाइम। एक परमेश्वर का टाइम है, मनुष्य का टाइम नहीं बोल रहा है। इन हिज टाइम ही मेड एवरीथिंग ब्यूटिफुल, मतलब 2 समय है जो मनुष्य ने फॉलो करना है, एक गॉड का टाइमिंग और एक मैन का टाइमिंग। मतलब हमारे पास 2 टाइम जोन्स में हमको ऑपरेट करना है ना। गॉड भी ऐसा ही करता है ना। मतलब जो हमारा टाइम टेबल है, जो हमारी घड़ी और क्लॉक होता है या कैलेंडर होता है, इसको क्रोनोस कहते हैं, क्रोनोस ना। इट्स क्रोनोलॉजिकल टाइम, सीक्वेंशियल, या तो हमारा क्लॉक जिसको बोलते हैं। पर गॉड के पास भी टाइम, उसको काइरोस बोलते हैं, गॉड्स अपॉइंटेड टाइम बोलते हैं। और गॉड का क्लॉक हेवेंस में दिखता है, स्काइज में दिखता है ना। वो तारेगन, इवन यीशु मसीह का जन्म जब हुआ था वो तारेगन के द्वारा डिपिक्ट किया था परमेश्वर। और प्रभु ने बाइबल में बता रहा है ना, ये अलग अलग साइंस होने वाले हैं, अर्थ में भी और हेवेंस में भी होना है। ये टाइम जोन्स को फॉलो करना बहुत जरूरी होता है। इनफैक्ट अमेरिका में आप देखेंगे तो 4 टाइम जोन्स है उनके पास। ये उनका देश इतना बड़ा, भारत से तो 4 गुना बड़ा है ना। सो उनके पास ईस्टर्न भी टाइम होता है, सेंट्रल टाइम, माउंटेन टाइम, ये पैसिफिक टाइम, ये 4 मेजर उनके टाइम जोन्स होते हैं। मैंने सुना था कि जो लोग टाइम जोन के बाउंड्री में रहते हैं, उनका घर एक टाइम जोन में है और वर्क प्लेस दूसरा टाइम जोन में, तो उनके घर में 2 क्लॉक रखना पड़ता है उनको। एक होम टाइम है और एक वर्क टाइम है ना, नहीं तो बड़ा गड़बड़ हो जाएगा उनको। उसी रीति से हर क्रिश्चियन बिलीवर्स ने भी हमको 2 टाइम जोन पर ध्यान रखना है ना। एक अपना डेली टाइम टेबल जिसके द्वारा हम काम करते हैं, और वो वाला टाइम टेबल नहीं भूलना, गॉड का कैलेंडर। अफसोस की बात है, बहुत सारे क्रिश्चियन लोग भी ना अपने ही टाइम टेबल में इतने व्यस्त हो जाते हैं, अपने ही कामकाज में इतने व्यस्त हो जाते, वो वाला क्लॉक को, वो वाला टाइम टेबल देखने का हमको अवसर भी नहीं है, याद भी नहीं है। हमको बहुत ध्यान रखना है ना। देखिएगा, टाइम को एक्चुअली हमारा जो सोलर और लूनर है, ये सब सूरज, चंद्रमा, तो ये परमेश्वर ने बनाया। गॉड इज द ऑथर एंड द वेरी क्रिएटर ऑफ आवर टाइम ना। उसने सूरज, चंद्रमा, ये सारे तारेगन तो उसने बनाया। इनफैक्ट जेनेसिस 1:14 में भी लिखा है, एंड गॉड सेड लेट देयर बी लाइट्स इन द फर्मामेंट of the heaven to divide the day from the night, and let them be for signs and for seasons and for days and for years। मैं आपका यहां पर ध्यान 2 शब्दों की तरफ में ले जाना चाहता हूं ना। let them be for signs, हिब्रू में जो ये शब्द आता है उसको ओथ कहते, OTH। इसका मीनिंग और भी होता है, let them be for signals ना, let them be for beacons, let them be for flags ना, वो चिन्ह बताने के लिए। सो ये आकाश के तारेगन प्रभु ने कुछ इसलिए बनाया है, कुछ इशारे में बातचीत करने के लिए। दूसरा वर्ड जो यहां पर रिफर किया गया है ना, और कहता है हिंदी में तो अच्छा दिया गया, और वो चिन्हों के लिए और नियत समयों के लिए। इंग्लिश में कहता है लेट देम बी फॉर साइंस एंड फॉर सीजन। जो वर्ड सीजन वहां पर है, हिब्रू भाषा में मोआद बोलते हैं। मोआद का मीनिंग होता है मीनिंग फॉर एन अपॉइंटमेंट, मीनिंग फॉर अ फिक्स टाइम, इवन फेस्टिवल्स भी। ये मोआद करके जो शब्द आता है, लेट देम बी फॉर फिक्स टाइमिंग, फॉर एन अपॉइंटमेंट।
सो परमेश्वर ने ये सूरज, चंद्रमा, गैलेक्सी, स्टार्स बनाया है ना फॉर टू सिग्नल एन अपॉइंटेड टाइम ना, ये परमेश्वर ने बनाया है। उसके बाद परमेश्वर ने मोसेस को भी बोला था कि अलग अलग फीस्ट और पर्व इज़राइल में बनाना ना, और ये सारे जो फीस्ट और पर्व मैं आगे आपको बताने वाला हूं, इज़राइल के 7 फीस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है आज के संदेश के लिए ना। इसको फीस्ट जितने बनाए, लेट देम बी फॉर अपॉइंटेड टाइम्स, उनका एक समय ठहरा दिया जाए ना। ये फीस्ट जो है ना, ये एक्चुअल अपॉइंटमेंट ऑफ गॉड को बताते, ये एक्चुअली एक रिहर्सल है। रिहर्सल मतलब हो रहा पर्व प्रयोग, फाइनल इवेंट के पहले परमेश्वर इस फेस्टिवल्स के द्वारा बता रहा है आगे क्या होने वाला है ना। इसलिए ये फीस्ट ऑफ इज़राइल बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज ये गॉड के टाइम टेबल के अनुसार सब ठहरा दिया गया था। और ये जितने फीस्ट में आगे आपको पढ़ने वाला हूं ना, ये सब फीस्ट यीशु मसीह को दिखाएंगे ना। 7 फीस्ट पढ़ूंगा मैं, और पर ये आप देखेंगे ये सब कुछ यीशु मसीह के लाइफ का ये टाइम टेबल था। एक एक फीस्ट यीशु मसीह के लाइफ में एक मेजर इवेंट हो रहा है, उसको हम देखेंगे। पर सबसे पहले हम पढ़ेंगे लेविटिकस चैप्टर 23 वर्सेस 1 and 2। सब जन अपनी बाइबल से खोलेंगे, मैं इंग्लिश में पढ़ूंगा 2 वचन, फिर हिंदी पढ़ेंगे। एंड द लॉर्ड सेड unto Moses saying, speak unto the children of Israel and say unto them concerning the feast of the Lord, which ye shall proclaim to be holy convocations, even these are my feast। हिंदी में 1 और 2 कलम। फिर यहोवा ने मूसा से कहा, इज़राइलियों से कह कि यहोवा के पर्व जिनका तुमको पवित्र सभा एकत्रित करने के लिए नियत समय पर प्रचार करना होगा, मेरे वे पर्व ये है। इसमें कुछ खास वर्ड्स है मैं जो ले रहा हूं। पहली बात है ना, इसको फीस्ट ऑफ द लॉर्ड बोला, कंसर्निंग द फीस्ट। फीस्ट शब्द हिब्रू में अगेन मोआद आ गया, वही वर्ड जो जेनेसिस 1:14 में हमने पढ़ा था, वो तारेगन लेट देम बी फॉर मोआद, फॉर एन अपॉइंटमेंट। सो ये फीस्ट जो आगे 7 है, लेट देम बी एन अपॉइंटमेंट, अ डिवाइन अपॉइंटमेंट फ्रॉम गॉड। नंबर 1, लेट देम, मोसेस हैज गॉट टू प्रोक्लेम, घोषणा करना पड़ता है, लोगों को बताना पड़ता है ना। आगे पढ़ेंगे कुछ ट्रम्पेट्स के भी द्वारा, और लोगों ने बताया, घोषणा किया। आज भी प्रभु के आगमन के पहले परमेश्वर अपने दासों के द्वारा घोषणा, प्रोक्लेम कर रहा है। नंबर 3 जो वर्ड है कॉन्वोकेशन, लेट देम बी फॉर होली कॉन्वोकेशंस। जो होली कॉन्वोकेशन जो शब्द आया, उसका हिब्रू मीनिंग मिलता है, मीन्स अ ट्रायल परफॉर्मेंस, मीन्स अ रिहर्सल। दिस फेस्टिवल्स विल बी फॉर अ रिहर्सल। एक्चुअल जो इवेंट हो रहा है उसको डिपिक्ट कर रहे हैं इस कार्य के द्वारा ना। ये 3 बातों पर मैं जोर दे रहा हूं। सो ये जो दूसरा कलम है, ये सारे डेफिनेशंस को मिलाकर मैंने अपनी भाषा में बोला। परमेश्वर मोसेस को बोल रहा है, स्पीक और अनाउंस और प्रोक्लेम अनटू द पीपल अबाउट द अपॉइंटमेंट्स ऑफ द लॉर्ड, विच शैल बी रिप्रेजेंटेड बाय फीस्ट, विच आर द ड्रेस रिहर्सल्स ऑफ द फाइनल इवेंट। ये अपनी भाषा में मैंने बोला कि घोषणा करके लोगों को बताओ ना, जो परमेश्वर का नियुक्त ठहराया हुआ समय है, जो पर्वों के द्वारा बता दिया जाएगा। पर ये पर्व एक्चुअली जो फाइनल इवेंट्स हो रहे हैं, उसका ये ड्रेस रिहर्सल हो रहा है ना। इसलिए ये 7 फीस्ट जो इज़राइल की है, इस पर हमको ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। ये पूरे 7 पर्व यीशु मसीह के जीवन के बारे में दिखाते हैं ना। ये प्रॉफिटिक नेचर है इस फीस्ट में ना, और इसलिए इसको पढ़ना हमको बहुत ज़रूरी है। ये जो ओल्ड टेस्टामेंट के फीस्ट है और जितनी भी घटना, ये सब एक्चुअली क्राइस्ट को दिखाता है ना। पुराना नियम ये परछाई है, यीशु मसीह की परछाई है। जो ये 7 फीस्ट है, मैं पिकअप करूंगा इसको 3, 4 and 5 वचन से, हिंदी में डायरेक्टली पढ़ देंगे। लेविटिकस चैप्टर 23, 3, 4 and 5 वचन। 6 दिन कामकाज किया जाए, पर 7वां दिन परम विश्राम का और पवित्र सभा का दिन है। उसमें किसी प्रकार का कामकाज ना किया जाए। वह तुम्हारे सब घरों में यहोवा का विश्राम दिन ठहरे। फिर यहोवा के पर्व जिनमें से एक एक के
ठहराए हुए समय में तुम्हें पवित्र सभा करने के लिए प्रचार करना होगा वे ये है, पहले महीने के 14वें दिन को गोधूली के समय यहोवा का फसह हुआ करे। ये पूरे जो 7 फीस्ट है, आगे पूरे 44 वचन तक ये फीस्ट पाए जाते हैं ना, परंतु ये फीस्ट को 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया गया है। ये साल भर में मनाते थे इजरायली, और एक पार्ट होता था जो पहली 4 फीस्ट में आगे बताऊंगा आपको ना, वो उनके स्प्रिंग सीजन में आता था। स्प्रिंग मतलब रोपने का, जब अनाज बोते हैं ना, और दूसरा 3 जो है वो फॉल सीजन, कटनी के बाद में, जब कटनी हो गई उसके बाद फॉल सीजन, उसमें 3। ये जो 2 कैटेगरी है, ये पहले जो 4 जो फीस्ट आने वाले हैं ये यीशु मसीह के फर्स्ट कमिंग के बारे में था ना, पहले आगमन के। और दूसरा जो 3 सेट ऑफ फीस्ट आने वाले हैं आपको बताऊंगा मैं, ये यीशु मसीह के सेकंड कमिंग को दिखलाता है, सेकंड कमिंग को दिखलाता है। तो इसलिए ये 7 फीस्ट जो इजराइल की है, इसको वॉच करना हमको बहुत ज़रूरी हो जाता है। इसके द्वारा ना जो फर्स्ट सेट आने वाला है ना, यहाँ पर जो स्प्रिंग सीजन में आता है, ये यीशु मसीह के, अब देखेंगे, डेथ, बरियल, रेजरेक्शन और ऑल्सो होली स्पिरिट का पोर्ड आउट होना। यीशु मसीह का ये बहुत इंपॉर्टेंट इवेंट्स ऑफ लाइफ थे, और ये सारे इवेंट्स पूरे ये फीस्ट के दिनों में आए। ये फीस्ट के दिन एक भी आगे भी नहीं था, पीछे भी नहीं था ना। पहला फीस्ट पढ़ करके बताऊंगा मैं आपको ना, जो फर्स्ट सेट फर्स्ट कमिंग में आया था, वो फीस्ट ऑफ पास ओवर था, फीस्ट ऑफ द अनलीवन ब्रेड था, अखमीरी रोटी का पर्व था, और तीसरा था ना फीस्ट ऑफ द फर्स्ट फ्रूट्स, पहलौठे फल का फीस्ट, और फीस्ट ऑफ द वीक्स जिसको पेंटिकॉस्ट भी कहते हैं। ये फर्स्ट सेट ऑफ फीस्ट था जो यीशु मसीह के पहले आगमन के था। दूसरा सेट था जो सेकंड कमिंग को दिखाता है, फीस्ट ऑफ द ट्रम्पेट्स ना, जो तुरी फूकने का पर्व है, फीस्ट ऑफ द अटोनमेंट जिसको यौम कपूर भी कहते हैं ना, जो प्रायश्चित का ये पर्व था, और फीस्ट ऑफ द टैबरनेकल जब मिलाप होता है तंबू में ना, वो वाला भी एक फीस्ट बना दी। जो ये 3 जो सेकंड पार्ट है, ये सब सेकंड कमिंग का। फर्स्ट कमिंग में जब ये 4 फीस्ट थे, फीस्ट ऑफ द पास ओवर, फीस्ट ऑफ द पास ओवर जो लेविटिकस 23 और 5 में वर्णन किया गया ना, ये क्रूसिफिक्शन ऑफ क्राइस्ट को दिखाया गया। यीशु मसीह का क्रूसिफिक्शन उसी दिन में हुआ जिस दिन ये यहूदी लोग पास ओवर लैम को खाते थे ना। वो पास ओवर लैम यीशु क्रिस्ट को दिखाता था ना। ये उस दिन भी था जब बताने को था ये लोग मिस्र से निकाले गए थे और पास का पर्व मनाया था। ये मेमोरियल के लिए था, पर सब कुछ क्रिस्ट को दिखा रहा था, और उसका मेमने का लहू द्वार पर लगा दिया गया था, और जहां पर वो लहू लगाया गया वहां पर मृत्यु प्रवेश नहीं कर सकी। ये यीशु मसीह का लहू जो हम लोग आज भी ना लॉर्ड सपर के द्वारा मनाते हैं, मेमोरियल सर्विस है, ये भी एक फीस्ट है ना, बताने के लिए हम भी मिस्र से निकाले गए, मतलब पाप की गुलामी से निकाले गए, अब मृत्यु का कोई असर हमारे ऊपर में नहीं होता है। ये फीस्ट ऑफ द पास ओवर था जी। सेकंड फीस्ट आता है फीस्ट ऑफ द अनलीवन ब्रेड, अखमीरी रोटी का पर्व ना। ये पास ओवर के बाद में होता था, आपको अपने घर से खमीर निकालना पड़ता था, मतलब ना बहुत ये अपने आप को पवित्र करना था, शुद्ध करना था, पाप को दूर करना। ये अखमीरी रोटी यीशु क्रिस्ट को दिखाता है। यीशु मसीह में कोई पाप नहीं था, उसने भी कहा मैं जीवन की रोटी, मैं ट्रू ब्रेड हूं जो स्वर्ग से उतरा हूं ना। ये सब यीशु मसीह को दिखलाता। फीस्ट ऑफ फर्स्ट फ्रूट्स ना, पहले फल का ये पर्व था, ये भी क्रिस्ट को दिखलाता, ये क्राइस्ट के रेजरेक्शन को दिखाता था ना। ये सब कुछ यीशु मसीह को दिखलाता। और फिर फीस्ट ऑफ द वीक्स ना, जो सप्ताह का ये पर्व था, ये पेंटिकॉस को दिखाता था। होली स्पिरिट पेंटिकॉस के दिन उंडेला गया था ना, मतलब जो एक एक ग्रेट इवेंट्स हो रहे थे मसीह के लाइफ में, ये सब फीस्ट के दिनों में हुआ, इजराइल की फीस्ट के दिनों में हुआ ना। इसलिए ये फीस्ट को पढ़ना हमको बहुत ज़रूरी है।
ये सब हमने 4 फीस्ट जो सुना ये यीशु के जीवन में हुआ, इंक्लूडिंग पवित्र आत्मा भी उंडेला गया फीस्ट ऑफ द पेंटिकॉस्ट के दिन। अब ये 3 फीस्ट जो बाकी है, फीस्ट ऑफ द ट्रम्पेट्स, फीस्ट ऑफ द डे ऑफ अटोनमेंट एंड फीस्ट ऑफ टैबरनेकल ना, ये सब अब बाकी है। फीस्ट ऑफ द ट्रम्पेट्स को मैं आज डिटेल में लूंगा, समय मिलेगा तो हम लोग नेक्स्ट टाइम भी कंटिन्यू करेंगे इस टॉपिक को। यीशु मसीह के आगमन के बारे में कलीसिया को तैयार होना बहुत जरूरी है। फीस्ट ऑफ द ट्रम्पेट मैं आगे एक वीडियो आपको शो करने वाला हूं कि देखेगा ना फीस्ट ऑफ द ट्रम्पेट में कैसे ये जूइश लोग तुरी बजाते थे। ना ये रैम्स हॉर्न ना, ये जो बकरे का जो हॉर्न होता था इसकी तुरी फूकी जाती थी ना। ये जो फीस्ट होता था ये स्टार्टिंग होता है तीसरी मंथ से, हिब्रू कैलेंडर के अनुसार तीसरी मतलब हमारे लिए हो गया सितंबर। जो फीस्ट ऑफ द ट्रम्पेट्स सितंबर की बिगिनिंग्स में आता था, बताने के लिए ना जोर से तुरी फूकी जाती थी कि आगे डे ऑफ अटोनमेंट प्रायश्चित, और उस दिन के लिए अपने आप को तैयार कर दो ना, क्योंकि तुम परमेश्वर के साथ मुलाकात करने वाले। डे ऑफ अटोनमेंट था, प्रायश्चित था, महायाजक साल में एक दफे वो मोस्ट होली प्लेस में जाता था ना, गॉड के साथ मुलाकात और पूरे इज़राइल के पापों की क्षमा के लिए प्रार्थना। तो वो समय बहुत गंभीर होता था, तुरी फूकी जाती थी, उसके बाद अपने आप को तैयार रखना पड़ता था। महायाजक यीशु मसीह के साथ में मुलाकात करना है। मैं आगे कुछ फीस्ट ऑफ द ट्रम्पेट के बारे में शेयर करना चाहता हूं जो मैंने jewsofjesus.org ये वेबसाइट से लिया हूं, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आपके सामने में लेविटिकस 23 वाला चैप्टर और 23, 24 और 25 कलम हम हिंदी में डायरेक्टली पढ़ देंगे। फिर यहोवा ने मूसा से कहा, इज़राइलियों से कह कि 7वें महीने के पहले दिन को तुम्हारे लिए परम विश्राम हो। उसमें स्मरण दिलाने के लिए नरसिंगे फूके जाएं और एक पवित्र सभा इकट्ठी हो। उस दिन तुम परिश्रम का कोई काम ना करना और यहोवा के लिए एक हव्य चढ़ाना। जी, अगर आपने ध्यान से सुना, ये बाइबल बताती है ये फीस्ट ऑफ द ट्रम्पेट्स, लेट इट बी अ मेमोरियल ऑफ ब्लोइंग ऑफ ट्रम्पेट्स, लेट इट बी अ होली कॉन्वोकेशन बिफोर द लॉर्ड। मेमोरियल शब्द स्मरण के लिए ये तुरी फुकाना था तुमको ना, स्मरण करना था एक विशेष घटना जो पिछले दिनों में इज़राइल में हुई थी, जो एक बहुत बड़ी घटना हुई थी। और वो बड़ी घटना थी जब परमेश्वर इज़राइल के साथ माउंट साइनाई पर, सीना पर्वत पर मुलाकात करने को उतरा था। जब एक्सोडस चैप्टर 19 में वर्स 13 में, मैं आपके लिए हिंदी में उसका लास्ट पार्ट पढ़ दूंगा, और जब महाशब्द वाले नरसिंगा का शब्द देर तक सुनाई दे तब लोग पर्वत के पास आए ना। ये लाउड साउंड ट्रम्पेट का फूंक दिया जाए, ब्लोइंग ऑफ द ट्रम्पेट हो तो सब लोग वो पर्वत के निकट आ जाना। और आगे 16, 17, 18 और 19 आप हिंदी में डायरेक्टली पढ़े, बट सुनिएगा बहुत ध्यान से जब ये पढ़ा दिया जाता है। यस प्लीज। जब तीसरा दिन आया तब भोर होते ही बादल गरजने और बिजली चमकने लगी और पर्वत पर काली घटा छा गई। फिर नरसिंगे का बड़ा भारी शब्द हुआ और छावनी में जितने लोग थे सब कांप उठे। तब मूसा लोगों को परमेश्वर से भेंट करने के लिए छावनी से निकाल ले गया और वे पर्वत के नीचे खड़े हुए। और यहोवा जो आग में होकर सीने पर्वत पर उतरा था, इस कारण समस्त पर्वत धुएं से भर गया और उसका धुआं भट्टे का सा उठ रहा था और समस्त पर्वत बहुत कांप रहा था। फिर जब नरसिंगे का शब्द बढ़ता और बहुत भारी होता गया तब मूसा बोला और परमेश्वर ने वाणी सुनाकर उसको उत्तर दिया।
यस, ये तूरियां बहुत लाउड ऑन द थर्ड डे इन सभी इजरायली को परमेश्वर से मुलाकात करने के लिए खड़ा हो जाना था। और जब ये लाउड तूरी फूकी गई ऑल थ्रू आउट द कैंप, लाउड ना, ये ट्रम्पेट्स ब्लोइंग हो रहा था ना, तो परमेश्वर सीना पर्वत पर उतरा एंड देयर वाज अ साउंड ऑफ थंडर एंड लाइटनिंग एंड थिक क्लाउड्स upon the mountain, and the voice of trumpet was exceeding loud, जोर से फूका दिया जा रहा था ना, और भयंकर स्मोक फर्नेस ऑफ स्मोक था वहां पर ना, and the voice of the trumpet, verse 19 में, it grew louder and louder and waxed louder, and Moses spoke and God answered. Hallelujah. परमेश्वर मनुष्य के साथ उतर आया बातचीत करने के लिए। ये मेमोरियल के लिए था ना, क्योंकि माउंट साइनाई के दिन में परमेश्वर ने आमने सामने एक बातचीत किया इनके साथ में, और कवेनेंट इस्टेब्लिश, मोजाइक कवेनेंट ना, वो कवेनेंट इस्टेब्लिश कर दिया गया था और लोगों को आंसर करना था। जो जो परमेश्वर ने बोला हम उसको वैसा ही करेंगे। इसलिए ये ब्लोइंग ऑफ द ट्रम्पेट्स आज भी इजराइल में कर दिया जाता है ना, बताने के लिए कि एक कवेनेंट परमेश्वर ने आपके साथ में बांधा है। आप अपना काम पूरा करो, परमेश्वर अपना कार्य पूरा करेगा ना, वो स्मरण दिलाने के लिए था मैनकाइंड को दैट यू हैव एंटर्ड इनटू अ कवेनेंट। हम लोग लॉर्ड सपर भी ये कवेनेंट है ना, ये मेमोरियल सर्विस है ना, हम लोग लॉर्ड सपर भी लेते हैं बताने को, एक वाचा मैंने मेरे प्रभु के साथ में बांधा हूं, मैं अपने आप को शुद्ध करूंगा, पवित्र करूंगा, और परमेश्वर मेरे संग संग रहता है ना, और एक एक शर्त को वो पूरा कर देता है ना। ये तूरी फूक के द्वारा उनको स्मरण दिलाने के लिए था। द होल डे तूरी फूकी जाती थी ना, ये तैयार करने को था इजराइल को। ये बहुत बड़ी घटना थी कि परमेश्वर इजराइल के साथ कवेनेंट बांध दिया है ना, इसलिए तूरी फूकी जाती थी। आज हम भी अब्राहम की संतान है ना, हमारे साथ भी परमेश्वर ने वाचा बांध के रखा है ना, ये तूरी फूकी जाती है, पूरा स्वर्ग हमारे डिफेंड करने में खड़ा हो जाता है, परमेश्वर हमारी रक्षा करता है, और इसके बाद इजराइल को अपने आप को शुद्ध। इसलिए हमने जो पढ़ा एक्सोडस 19 चैप्टर 13, पहले रन सिगड़ा फूका गया है और फिर अपने आप को तैयार करो, एंड फाइनल डे में लाउड ट्रम्पेट्स फूका जाता है। कम ऑन, लेट्स मीट द लॉर्ड इन द हेवनलीज, परमेश्वर के साथ में मुलाकात होने के लिए ना। सो ये ट्रम्पेट्स फूका जाना बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सारे फीस बता रहे हैं मसाया क्रिस्ट यीशु का सेकंड कमिंग को पॉइंट कर रहा है ना, इसलिए एमिनेंट रिटर्न ऑफ लॉर्ड जीसस क्राइस्ट, यीशु मसीह का आना बहुत जल्द है। ये साइंस को वॉच करो, ये साइंस प्रभु ने ठहराया है ना, ये मुआद है, अपॉइंटमेंट है। मेरा प्रभु अपॉइंटमेंट बांधा है मैनकाइंड के साथ में। एक हेवेंस क्लॉक टिक होते जा रही है, धुरी फूकी जाएगी, हम सब उठा लिए जाएंगे ना। आगे इब्रानी उसका 12 चैप्टर 18 से 24 आप खोलिएगा ना। इतना लंबा पढ़ने का समय मेरे पास में तो नहीं है, पर जरूर आप अपने बाइबल्स में नोट करें और पढ़ने भी पाए इसको ना। 18 से लेकर 24 में यहाँ लेखक ने वही नरेट करता है जो घटना मोसेस के दिनों में हुई, कि जब लोग वो पर्वत के किनारे खड़े हो गए, और कहता है आज हम सीना पर्वत पर नहीं पर हम माउंट साइनाई के पास खड़े हो गए। हम लोग हेवनली जेरूसलम, हम लोग लिविंग गॉड के पास में, एंड इन्यूमरेबल कंपनी ऑफ एंजल्स के पास में खड़े हो गए, टू द जनरल असेंबली एंड द चर्च ऑफ द फर्स्ट बॉर्न हुज नेम्स आर रिटन इन द बुक ऑफ लाइफ। और वो मीडिएटर यीशु मसीह जो न्यू कवेनेंट का है 24वां कलम में ना, हम उसके साथ आज सामने में खड़े हो जाते हैं। हालेलुया, 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 हालेलुया। ओ यीशु मसीह बहुत जल्द आ रहा मेरा भाई, मेरा बहन। हालेलुया। अपने आप को तैयार कर, अपने घर को, अपने परिवार को तैयार कर, यीशु मसीह के साथ में ग्रेट मुलाकात होने वाली है। ये ट्रम्पेट्स फूका जाता था, ये ट्रम्पेट्स कुछ बता रहे हैं। इसका ट्रम्पेट्स का फूकना ना बताने को है मेरा यीशु मसीह बहुत जल्द आ रहा है। मेरा तो विश्वास है हमारी आंख वो रहेगी, हम देखने वाले हैं बादलों में यीशु मसीह आने वाला है। हमारे कान ये ब्लेसेड ईयर्स है, हमारे कान वो रन सिंगड़ा का आवाज
को सुनने वाले हैं। मतलब ये जनरेशन है जो परमेश्वर के पास उठा लिया जाएगा और युगाना युग के लिए हम परमेश्वर के पास रहने वाले हैं। मैं आगे और भी पॉइंट्स निकाला हूं ना, oneforisrael.org वेबसाइट से, और 10-11 पॉइंट्स उन्होंने नोट किया है। मैं जल्दी से पढ़ूंगा। ये ट्रम्पेट्स ब्लो का जब करते थे ना, उसमें कारण ये होता था कि time to pack up and move on when the Israelites were traveling in the desert. इसलिए ये रन सिगड़ा फूका जाता था, मतलब time to pack up. Number 2, time to gather the people and call an assembly. Number 3, to make a sacrifice on the feast day. Number 4, warning of a war. Number 5, to praise. Number 6, to declare a procession or a feast. Number 7, proclaiming the king is coming. Number 8, assembling the troops for battle. Number 9, to be used in the battle. Number 10, to declare the victory. And number 11 भी कहता है, 1 थेसलोनी 4 चैप्टर और 16 आप पढ़ देंगे। यह यीशु मसीह के आगमन के बारे में पौलुस पढ़ रहा है। क्योंकि प्रभु आप ही स्वर्ग से उतरेगा, उस समय ललकार और प्रधान दूत का शब्द सुनाई देगा और परमेश्वर की तुरी फूकी जाएगी और जो मसीह में मरे हैं वे पहले जी उठेंगे। यस ना, पौलुस कहता है, हे भाइयों, मैं नहीं चाहता तुम अनजान रहो प्रभु के आगमन के बारे में। और जब मेरा प्रभु बादलों पर आएगा, हजारों सैकड़ों करोड़ों स्वर्गदूतों के साथ में, अपने संतों के साथ, और हमारा नेक्स्ट मुलाकात मसीह के साथ बादलों पर होने वाला है। और वो समय ना, वॉइस ऑफ द आर्कएंजल एंड साउंड ऑफ द ब्लोइंग ऑफ ट्रम्पेट्स होने वाला है। और जो प्रभु में सोए हैं सब कब्रें खोली जाएगी और वो उठा लेंगे, और हम जो जीवित हैं युगाना युग के लिए प्रभु यीशु मसीह के साथ उठा लिए जाएंगे। हालेलुया, 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 हालेलुया। यीशु मसीह का धन्यवाद कर मेरे भाई, मेरे बहन। अपने आप को तैयार कर, अपने आप को तैयार कर। जब जब ये तुरी फूकी जाती थी इज़राइल में, लोग तैयार करते थे। जैसे सीना पर्वत पर मुलाकात होने से पहले 3 दिन का समय दिया था, टू वॉश योर क्लोथ्स, गारमेंट्स को क्लेंस करो ना, और अपने आप को शुद्ध कर दो, बिकॉज इनकाउंटर विद गॉड होने वाला है। ये तुरी फूकी जा रही है, आपको और मुझको तैयार करना है। नॉट ओनली फिजिकल दिस टाइम बट स्पिरिचुअली प्रिपेयर करना है, स्पिरिचुअली प्रिपेयर करना है। हर एक पाप जो मुझको मसीह से अलग कर देता है उसको उतारना आज उतार दो। आज मन फिराओ, आज पछताव करो ना कि प्रभु मुझसे गलती हो गई। अगर पवित्र आत्मा ये समय भी आपको कुछ बोल रहा है, रिपेंट माय ब्रदर, रिपेंट माय सिस्टर, मन फिराओ, पछताव करो, दोबारा मैं ये गलती कभी ना करूं मेरे प्रभु। आज मन फिरा कर, रो रो कर मेरे प्रभु के पास वापस लौट आए। अंत में मैं ये वचन पढ़ूंगा और फिर आपके लिए प्रार्थना करूंगा। हिंदी में हम डायरेक्टली पढ़ेंगे लूका 21 वाला चैप्टर 25 से लेकर 28 कलम। थोड़ा लंबा है पर ध्यान से सुने। और सूरज और चांद और तारों में चिन्ह दिखाई देंगे और पृथ्वी पर देश देश के लोगों को संकट होगा, क्योंकि वे समुद्र के गरजने और लहरों के कोलाहल से घबरा जाएंगे और भय के कारण और संसार पर आने वाली घटनाओं की बाट देखते देखते लोगों के जी में जी ना रहेगा, क्योंकि आकाश की शक्तियाँ हिलाई जाएंगी। तब वे मनुष्य के पुत्र को सामर्थ और बड़ी महिमा के साथ बादल पर आते देखेंगे। जब ये बातें होने लगे तो सीधे होकर अपने सिर ऊपर उठाना, क्योंकि तुम्हारा छुटकारा निकट होगा। धन्यवाद और धन्यवाद और धन्यवाद प्रभु। ये सब घटनाएं हमारी आंखों के आगे देख रहे हैं। 26 कलम में मेन्स हार्ट फेलिंग देम फॉर फियर एंड फॉर लुकिंग आफ्टर दोज थिंग्स व्हिच आर कमिंग ऑन द अर्थ, for the powers of the heaven shall be shaken, and then shall they see the Son of Man coming in a cloud with power and great glory. 28 kalam, and when these things begin to come to pass, then look up and lift up your heads, for your redemption draweth nigh. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. आइए अपने आंखों को बंद करें, सिर को झुकाए, हम प्रार्थना में जाएं।
थैंक यू लॉर्ड, हालेलुया 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 हालेलुया। मेरा मालिक यीशु मसीह जल्द आ रहा है, जल्द आ रहा है, जल्द आ रहा है। यस लॉर्ड, यस लॉर्ड, यस लॉर्ड प्रभु जी, हालेलुया। ओ परमेश्वर पवित्र आत्मा के द्वारा हमें कुछ बोल रहा है, मेरा आना बहुत जल्द है लॉर्ड, हालेलुया। मन फिराओ पछताओ करो, मन फिराओ पछताओ करो, आलसीपन छोड़ दो। अभी नींद से जाग उठने का समय आ पहुंचा है, हालेलुया। अभी खोटे काम को छोड़ दो, गंदे कामों को छोड़ दो, ओ बुरी आदतों को छोड़ दो, मन फिराओ। रिपेंट टुडे, रिपेंट टुडे, नाउ इज द टाइम, नाउ इज द टाइम, नाउ इज द टाइम, हालेलुया हालेलुया हालेलुया। ओ प्रभु यीशु मसीह मेरा खुदावन जल्द आ रहा है, जोशुआ के समान हम भी कहने पाए, एज फॉर मी एंड माई हाउस वी विल सर्व द लॉर्ड, वी विल सर्व द लॉर्ड। यस लॉर्ड, एक एक घर परिवारों के लिए प्रार्थना करता हूं पिता परमेश्वर प्रभु, हर एक घर तैयार होने पाए ओ प्रभु तेरे आगमन के लिए पिता परमेश्वर। हम नहीं जानते दोबारा ये सरमन सुनने मिलेगा कि नहीं पिता, ओ हर एक चिन्ह बताते तेरा आना बहुत जल्द है पिता प्रभु। कोई भी हमारे बीच में प्रभु पीछे मुड़कर ना देखने पाए पिता, ओ प्रभु लापरवाही सुस्ती आलसी ना होने पाए पिता, क्योंकि समय बहुत कम बाकी है पिता प्रभु जी। जिन लोगों ने अभी तक बैप्टिज्म भी नहीं लिया, मन भी नहीं फिराया, पछताव भी नहीं किया प्रभु, उनको तो तैयार कर, उनको बेचैन कर पिता प्रभु, मन फिरा कर अपने आप को तैयार करने पाए। मेरे खुदावन यीशु मसीह के साथ मुलाकात बहुत जल्द होने वाली है पिता प्रभु जी। परमेश्वर प्रभु उस समय तक प्रभु हम सभी की रक्षा करना पिता प्रभु, आत्मिक जीवन में तू बढ़ाते जा पिता, हमारी मदद कर और सहायता कर पिता। आज के इस वचन के लिए हम धन्यवाद देते पिता, प्रार्थना यीशु मसीह के प्यारे मीठे नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। थैंक यू लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर आप सभी को आशीष दे। अभी हमारे परमेश्वर पिता का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की संगति सामर्थ्य से लेकर मसीह यीशु आने तक हर एक भाई बहन के साथ सदा के लिए होती रहे, आमीन आमीन। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू, प्रेज द लॉर्ड।